Hey guys, so in today's video we are going to spill the beans about the most Secretive. information that we're going to give right now. It is the most important thing that will help you at this moment in your life. So this is a college preference list for NEET UG students. We are going to tell you about our preference list, which was around 5 years ago, but I think it's still valid because we are going to share some extremely important criteria that you have to keep in mind before filling up your list. The number one thing that you should keep in mind is that if those colleges are in close proximity, then you go and visit them, and not just visit. ऐसा बस infra देख के कुछ नहीं होगा. You need to talk to some senior that you can find there. कोई भी जो चल रहा है, you can go and talk to them so that you know the ground reality of that college. Because online जो भी दिखाते हैं, that isn't entirely real about one particular college, let alone the college, the hospital too. I remember in my UG days when our results came and there was still a little bit of time remaining for the allotment to happen and for us to fill our preference list. So at that time one of my friends and I decided कि चलो आजू बाजू के colleges तो जाके ही आते हैं, मतलब time है, क्यों नहीं देखना चाहिए कैसा है करके, because we know what we were getting into. And since I was in Mumbai and there were 5 colleges, government colleges in Mumbai, which I had in mind and I was going to fill as the top 5, which maybe I could get. So I was like यार top 5 मिलने का अगर chances है तो फिर preference list important है, so let's go and visit them. So we visited, एक ही दिन में we visited 5 colleges and वहाँ पे बस infra देख के नहीं, we just like stopped a random like a stranger like the student of that college and उनको पूछा, like senior ही थे, तो फिर obviously we asked के what are your reviews about the college, कैसा है in terms of different criteria which I'll tell you later, but everything in detail. So it definitely helped me a lot because मेरा preferences थोड़ा alter हुआ after that conversation that I had that day. So the number one criteria that you need to take into consideration for taking a college is the study that happens there and the professors that teach. अभी ये चीज आपको ऑनलाइन नहीं पता चलेगा कि कौन प्रोफेसर्स और कैसे पढ़ाते हैं. This is only by talking to someone that you'll know. And this is very important, especially in the initial years. जब तुम first second year में जाते हो, वहाँ पे mainly you're taught by the professors. It's not the patients that you interact with, because तब तक तुम्हारा basic knowledge ही develop. So that is where your core develop. And if the professors are good, if they can instill that interest in you, तो अपने आप आगे का पूरा जर्नी सॉर्ट हो जाता है. Yes, I remember anatomy practicals, dissection होता था, physio practicals होता था and biochemistry. These are the 3 subjects you will face in the first year. And वो practicals अगर interesting हो जाए ना, तो फिर like वो पढ़ने का एक बार strength आ जाता है. Because since you have just given NEET UG, तुम्हारे दिमाग में से मजा रहेगा and देखते ही देखते 1 साल ऐसे ही निकल जाएगा if you don't study. So obviously मजा तो करना है, but then अगर वो interest पहले से ही लाओगे, अगर प्रोफेसर अच्छे मिले, so definitely it will help you a long way. So second criteria, it is the travel that you have to keep in mind. If you are taking a college in your city and if you are going to be a localite, तो तुम्हें लगेगा यार 1 घंटा 1.5 घंटा travel is fine, I can do it as far as I'm coming home. तो अगर 2 colleges है, एक बहुत ज्यादा दूर है, एक थोड़ा सा पास है, तो try to see कि अगर वो college तुम्हें बाकी सब criteria में अच्छा लग रहा है, तो try to take that पास वाला college, because अभी ये stage पे तुम्हें लगेगा यार हम तो travel कर लेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा is fine definitely, जो दूर वाला college जा सकते हैं. But after a point when you come in 3rd year, final year, तो ये पढ़ाई का pressure बहुत बढ़ जाएगा. एंड पढ़ाई के साथ साथ प्रॉब्लम है ट्रैवल में कर लूंगा वो सब तो ठीक है, बट वंस यू रीच होम यू आर वेरी टायर्ड, बिकॉज यार इफ यू आर इन अ मेट्रो सिटी बहुत भीड़ होता है, ट्रेन में बहुत ट्रैफिक होगा, 1 घंटे का 2 घंटा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा पीक टाइम्स पे, एंड दैट प्रेशियस टाइम इज लॉस्ट इन ट्रैवल, जो तुम्हें समझेगा भी नहीं. तो अल्टीमेटली हमारे जैसा भी, हम पास रहते हैं, आई अग्री, ही स्टेज लाइक 1.5 और ऑलमोस्ट फार, ही ट्रैवल फॉर 4 years, बट अभी हम भी शिफ्ट हो गए बिकॉज इंटर्नशिप और फाइनल ईयर वॉज है. तो इफ यू फील दैट थोड़ा बच सकता है टाइम ट्रैवल पे, थोड़ा बेसिक कॉम्प्रोमाइज करके, देन डू दैट. एंड इफ यू आर अ हॉस्टलाइट तो डेफिनेटली वील कम टू दैट लेटर. So the next criteria is, अभी सिर्फ पढ़ाई का बात तो करेंगे नहीं, कॉलेज में आए हैं फाइनली नीट के बाद, तो फेस्ट आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर. मतलब मैंने तो बहुत सोचा था कि फेस्ट ही सबसे मेन चीज होगा बिफोर टेकिंग अप अ कॉलेज. तो ऐसा होता है कि एवरी कॉलेज हैज अ नंबर ऑफ फेस्ट, लाइक किसी के पास किसी में 1-2 होता है, किसी में 3-4 भी होता है. दीज फेस्ट आर कल्चरल, फिर एजुकेशनल टाइप के भी होते हैं विच आर कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल. सो दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग योर acumen and in helping in making sure कि तुम मैनेजरियल वो सब पोस्ट भी संभाल सकते हो. तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, एंड वी वुड सजेस्ट कि 1-2 फेस्ट्स आर गुड बैलेंस इफ अ कॉलेज है. तो यू कैन आस्क द सीनियर्स, वो पता चल जाता है कितने फेस्ट होते हैं, कितना ग्रैंड होता है. तो बहुत ज्यादा ग्रैंड फेस्ट भी फिर तुम एकदम इन्वेस्ट हो जाते हो, बट गुड फेस्ट तो तुमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं. फर्स्ट 2 years में बहुत एंजॉय कर देते हैं. तो मेरे टाइम पे व्हेन आई चोज अ कॉलेज ओवर अनदर वाज, एक कॉलेज में आई हैड हर्ड कि यार सिर्फ फेस्ट ही है, बहुत मजा आता है, बहुत ग्रैंड फेस्ट होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स है, एकदम करोड़ पैसा जाता है वो फेस्ट में, एंड आई वाज लाइक वाओ यही तो चाहिए लाइफ में. बट देन वही कॉलेज का ये भी था कि बिकॉज ऑफ दिस पढ़ाई और अटेंडेंस और उतना फोकस नहीं रहता उस पर. द अदर कॉलेज हैड
गुड अमाउंट ऑफ फेस्ट एंड गुड अमाउंट ऑफ स्टडीज ऑल्सो। तो अगर अच्छा फेस्ट भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज बेटर बिकॉज एक बैलेंस रहता है। एंड वो फेस्ट भी जो कॉलेज में मैं हूँ अभी उसके फेस्ट तो अच्छे ही है, एज यू हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो वो देख लो। तो एंड ऑब्वियसली फेस्ट के अलावा भी यू विल हैव रैंडम इवेंट्स, टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर, then you have freshers party, you have treasure hunt, you have random cycling, marathons. At your like at third year or something, you will form the council, so you will be managing the fest firsthand, so that is also good experience. So the next criteria is the hostel. So obviously जो बाहर से आ रहे हैं, who are planning to shift cities, come from far away to study medicine in different cities. So obviously घर वालों का, तुम्हारा सबका टेंशन रहता है यार कहाँ रहेंगे, कैसा होगा, जी पाएंगे क्या करके दूर, because I am very sure कि अभी तक तुम सब घर पे ही थे, and obviously जो कोटा वगैरह करते हैं तो, बट जो घर पे ही थे बेचारे मम्मी के साथ, उनको थोड़ा डर लगेगा। सो ऑब्वियसली हॉस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो दैट कॉलेज हैज अ गुड हॉस्टल फैसिलिटी, कैसा है रूम स्ट्रक्चर, कितने लोग हैं पर रूम, बिकॉज मेरे कॉलेज में आई वुडंट लाइक से कि अच्छा हॉस्टल है, बिकॉज नहीं है। लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर्स को मुश्किल से मिल जाता है, बट सो सिंस यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर तुमको पहले से ही देखना पड़ेगा हॉस्टल है कि नहीं। तो हो सके तो पता करो इफ दैट कॉलेज हैज अ हॉस्टल फैसिलिटी, एंड अगर वहाँ पे कोई सीनियर है जो रह रहा है उनसे फर्स्ट हैंड बात करोगे तो बेटर होगा, बिकॉज यू विल नो द रियलिटी। वेबसाइट पे या वो स्टूडेंट सेक्शन हाँ आ जाओ मस्त है करेंगे, तो यू हैव टू नो द रियलिटी। एक बार वो सिटी ट्रैवल कर लो अपने पेरेंट्स के साथ, देन योर पेरेंट्स विल ऑल्सो फील बेटर कि हाँ चलो ये जगह अच्छा है, यहाँ पे अपने बच्चे या बच्ची को भेज रहा हूँ मैं, इट्स नॉट दैट बैड। तो गो विद योर फैमिली, डू अ ट्रिप ऐसा नीट यूजी वाला, गो देयर, सी द हॉस्टल, एक दो सीनियर से बात करो कैसा है, सी इफ इट इज वेल मेंटेन, मतलब वॉशरूम का सिचुएशन कैसा है, सिक्योरिटी है कि नहीं, कितने लोग हैं पर रूम, एंड एवरी ईयर का पूछो फर्स्ट ईयर में कितने, सेकंड ईयर में कितने, एंड सो ऑन। सो वो पूछ लो। अगर हॉस्टल नहीं है एंड यू वांट टू कम टू मुंबई, एंड जैसा हमारा कॉलेज है जहाँ पे हॉस्टल मुश्किल से मिलता है, एंड यू आर ओके विद स्पेंडिंग अ फ्यू बक्स एंड लिविंग आउटसाइड हॉस्टल, दैट्स फाइन। उसका रेंट पता कर लो, हाउ इज द रेंट, कोई और शिफ्ट होने को रेडी है क्या, फाइंड आउट, तो थोड़ा एडजस्टमेंट ईजी होगा। So the next one is infrastructure. अभी the college का infrastructure is definitely important. If you are going into a government college, so it is even more important because किसी का बहुत dilapidated होता है and किसी का good enough होता है. Now infra में the number one thing that you need to look into is the library. लाइब्रेरी अच्छा होना चाहिए, एंड द रीजन फॉर दिस इज कि अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो काफी कमोशन होगा, बहुत बार डिस्टर्ब होगे तुम। अगर कभी एक्चुअली एकदम अच्छे से पढ़ना है ना डेडिकेटेड, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि इतने फ्रेंड्स हैं उनके साथ नहीं होगा, और तुम्हारे रूममेट्स भी होंगे। तो यू नीड अ गुड लाइब्रेरी विद एसी एंड ऑल फैसिलिटीज जहाँ पे तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। एसी इज नॉट अ नेसेसिटी, बट ठीक है। यस, हाँ, मतलब अच्छा है तो ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट मतलब हवा आना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड। देन सेकेंडली अगर आप लोकलाइट हो तो भी यू नीड दिस थिंग अ लाइब्रेरी, बिकॉज बहुत बार होता है कि ट्रैवल में नहीं हो रहा है पढ़ाई, घर पे भी डिस्टर्बेंस है इसलिए नहीं हो रहा है, यू प्रेफर टू स्टडी इन द लाइब्रेरी एंड देन गो लेट टू होम, तो उसके लिए भी यू नीड अ गुड लाइब्रेरी, तो वो सबसे पहले देख। सेकेंडली यू हैव द लेक्चर हॉल्स एंड ऑल, वो थोड़े बड़े वेल वेंटिलेटेड वो सब होने चाहिए। इफ यू कैन सी अगर तुम्हारे कॉलेज में कितने लोग आ रहे हैं, 150 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ स्पेस है कि नहीं, यू कैन आस्क देम आउट, बिकॉज ऐसा होता है कि कहीं कहीं में एकदम क्रैम हो जाते हैं और फिर वो बहुत सफोकेशन आता है, फिर कोई मतलब धीरे धीरे लोग अटेंड ही नहीं करते हैं ये सोच के कि यार वहाँ करना पड़ेगा। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, वो सब क्राइटेरिया में रखो। So another criteria which is not that important but definitely important which we have learned over the years is the bond service. ये हमें पहले पता नहीं था, हम इतना सोचते नहीं थे इसके बारे में, but now we have realized कि bond is a big thing that you have to keep in mind before deciding anything. तो महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है, तो whichever state you are going or whichever state you are in, देखो वहाँ पे क्या सीन है। कहीं कहीं स्टेट में 2 साल का बॉन्ड होता है आफ्टर नीट यूजी, कहीं कहीं 1 होता है, महाराष्ट्र में जैसे 1 है, तो देखो वो, एंड इफ दैट इज एप्लीकेबल टू यू जस्ट पता करो बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। Another criteria to keep in mind is the patient exposure and good hospitals with the medical college. So obviously government colleges has like obviously good patient exposure over private colleges and that is the advantage of government colleges. So but government colleges में भी differ करता है ये patient load. जैसे metro cities है, मुंबई है, definitely more population here, more good infrastructure of hospitals here. So यहाँ पे patient load ज़्यादा आता है. So obviously initial years in 1-2 years of MBBS उतना matter नहीं करेगा. Actually second year से चालू हो जाता है तुम्हारा clinical postings. You have a posting slot in the morning in which you will go to the hospital. तुम residents doctors के पीछे रहोगे. You will see what they do. You will have like case taking and everything from the second year. So obviously patient load important है because the amount of cases you will see उस पे तुम्हारा knowledge depend करेगा. So it is not the books that will teach you. It is the patient that will teach. Because जितना number of cases देखोगे, types of cases देखोगे, and even if एक particular
पर्टिकुलर केस भी बहुत बार देखोगे तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज यार देख के चीजें बहुत अच्छे से याद आती है। जो भी बुक में पढ़ते हो अगर वो सामने दिखता है तो इट्स डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट ओवर एनीथिंग। तो गो टू द हॉस्पिटल्स इफ यू हैव अ चांस और पता करो ओके। एंड इफ योर हॉस्पिटल या सो आई वाज टेलिंग अबाउट द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पे इमरजेंसी कैसा है, इनपेशेंट कैसा है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है क्या, एंड रेडियोलॉजी कैसा है, लैब्स कैसा है, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है पेशेंट्स कितने आते हैं। सुपर स्पेशलिटी है मतलब तुम सोचो कितने डिफिकल्ट और हाई प्रोफाइल नहीं, हाई लेवल के केसेस यहाँ पे ट्रीट होने होते हैं। गुड इमेजिंग सर्विसेज होंगे तो गुड पैथो लैब होगा, गुड माइक्रो लैब होगा, तो डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ केसेस एट दैट हॉस्पिटल विल बी वेरी हाई। जैसे मुंबई में वील टेल यू ऑल द 5 हॉस्पिटल्स हैव अ रियली गुड लोड एंड एवरी हॉस्पिटल हैज लाइक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, सो सुपर स्पेशलिटी, गुड लैब, गुड रेडियो, एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंबई के इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है विद पेशेंट लोड एंड एक्सपोजर। कूपर इज अ न्यू वन कमिंग आउट बट नाउ आई थिंक इज डेफिनेटली at par with other colleges. So next to last छोटे-छोटे criteria we like you to keep in mind is that वहाँ का फी कैसा है। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस का उतना वेरी नहीं करता है। स्कॉलरशिप्स एंड ऑल जो होते हैं इसमें यूजुअली पीपल दो सेवरल कैटेगरीज आप पता कर सकते हो सीनियर्स से कि क्या आपका किस को मिलता है। Exactly. इसमें मोस्टली ऑलमोस्ट द एंटायर फीस गेट्स रिफंडेड टू यू। या तो दैट वन ये मेनली गवर्नमेंट में ही होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू कैन आस्क आउट। Yes. ये है हर जगह स्कीम। बाकी अदर देन दैट यू आल्सो हैव द इंटर्नशिप स्टाइपेंड, वो आप पूछ सकते हो। वो अलग अलग वो पूरे स्टेट में ही सेम रहता है। जैसे महाराष्ट्र में है ना, आई डोंट नो। हाँ या अच्छे से आता है मुंबई में एटलीस्ट सबका सेम ही है स्टाइपेंड, अराउंड 10K है फिलहाल। हाँ, तो वो तो आगे की बात है, बट स्टिल इफ यू आर एक्साइटेड टू नो एंड तुम्हें जानना है यार मेरे कॉलेज में आगे जाके मुझे कितना पैसा मिलेगा, सो यू कैन सर्च अबाउट दैट। एंड द लास्ट पार्ट आई नो इज नॉट, यू वोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, बट हम अभी बस बोलना चाहते हैं इफ यू कैन फाइंड आउट कि वो कॉलेज से पीजी में कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, कितने रैंक्स आते हैं लोगों के और कौन सी स्पेशलिटीज लेते हैं वो लोग, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द एनवायरमेंट इन दैट कॉलेज, कैसा फोकस है वो क्राउड का कॉलेज के। बिकॉज इफ देयर आर गुड नंबर ऑफ पीजी सिलेक्शन फ्रॉम दैट कॉलेज, मतलब यार बहुत स्मार्ट सीनियर्स है, यू विल गेट अ रियली गुड गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ योर स्पेशलिटी इफ यू वांट टू गो। और पढ़ाई का एनवायरमेंट थोड़ा अच्छा है, गुड कॉम्पिटिटिवनेस है, अच्छा एनवायरमेंट है विच विल मोटिवेट यू टू यू नो यार मेरे सीनियर को आया है शिट यार 5 तो यार मेरे को भी आ सकता है, वैसा दिमाग में रहेगा तो इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग। एंड या डेफिनेटली लास्ट पॉइंट, दिस वीडियो इज नॉट टू अपसेट एनीवन। ऐसा नहीं है ये क्राइटेरियाज मैच नहीं हुए तो शिट मेडिकल कॉलेज ही अच्छा नहीं है, मैं क्यों करूँ MBBS, इससे अच्छा मैं रिपीट ही कर लूँ, मुझे वो टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट, दीज आर द आइडियल्स दैट वी हैव गिवन यू। डेफिनेटली ऑल ऑफ द क्राइटेरियाज कैन नॉट बी यू नो मेट। यार टॉप के 3-4 क्राइटेरिया भी अच्छे मिल गए और अगर वो कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा है तो एक भी मार मत सोचो, ले लो। ओके, दिस इज नॉट टू अपसेट यू, दिस इज जस्ट अ आइडियल गाइड for you to take a better decision. Now coming on to something that you've been waiting for in the time, So it's our preference list. तो हमने हमारा जो रैंक आया था उसके हिसाब से हमारा मेन प्रेफरेंस वाज कि मुंबई में कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, और उसके बाद हमने आगे का देखा था कि थाने, पुणे एंड अलग अलग ऐसे। yeah, we had like our ranks within 500 of Maharashtra का state rank, so we had a good chance of getting a government top 5 में से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता हमें। तो हमने मेनली मुंबई, पुणे एंड महाराष्ट्र के थोड़े सिटीज बाद में डाले थे बिकॉज यार नहीं मिलेगा मुंबई तो जाना तो है ना कहीं। So we had put few peripheral colleges, but ये भी अराउंड हो गए थे, अराउंड 15, तो उसमें से भी हमें प्रेफरेंस सिलेक्ट करना ही था अपना। तो हमने ये क्राइटेरिया दिमाग में रखे एंड अब हम बताएंगे कि हमारे टॉप 5 या टॉप 7 कॉलेजेस क्या थे। तो हमने नंबर 1 रखा था विच इज KEM सेठ GSMC कॉलेज, ये परेल में है मुंबई में कॉलेज, एंड दिस इज आई गेस हमारे सब बहुत कलीग्स का टॉप चॉइस यही रहता है, मुंबई में नंबर 1, महाराष्ट्र में नंबर 1 कॉलेज। तो GSMC में हमने जो भी क्राइटेरिया बताया ना आपको बहुत कुछ सेटिस्फाई होता है, वहाँ का एजुकेशन इज ग्रेट, वहाँ के सिलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, सब वहाँ पे टॉप वाले लोग ही आते हैं। तो उधर का यू विल थिंक कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई अच्छा होता है, बट दैट्स नॉट इट। दे आर अचीवर्स इन अ लॉट ऑफ एरियाज, उनका स्पोर्ट एंड ऑल भी बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ के फेस्ट अच्छे होते हैं, वहाँ के जो टीम्स है जो स्पोर्ट इवेंट्स में जाते हैं वो भी विन करते हैं, स्पोर्ट्स डांस बहुत कुछ में GSMC विनर है। तो या इट्स द क्रीम ऑफ द कॉलेजेस व्हिच इज आई सिलेक्टेड। नंबर 2 फॉर अस वाज द कॉलेज दैट वी आर इन व्हिच इज LTMNC साइंस। तो ये ना बहुत ये मतलब वेरिएबल होता है, बहुत लोग सोचते हैं पहले ये डाला KEM उसके बाद वो JJ डालते हैं, तो JJ बाहर से अभी मुन्ना भाई प्लस JJ का बहुत ऐसा वो है नाम है। Yeah, because it's established in hundreds of years almost, I think, and yeah, तूने क्यों second ये डाला? Because I remember putting JJ as the second choice in the start because यार JJ है यार, it's a big college, 200 acres का college है, literally amazing buildings पुराने जमाने के and big halls everything, and मैंने सुना था यार वहाँ के फेस्ट, ओ बाप रे इतने मस्त होते हैं,
जू के वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हर्ड अबाउट इट. बट बाद में एंड सी इफ यू आर अ हॉस्टलाइट JJ कैन बी योर सेकंड चॉइस बिकॉज इट हैज अ रियली बिग हॉस्टल. ठीक है, इट्स अ रियली बिग हॉस्टल. सो आई वाज अ लोकलाइट, आई डिड नॉट नीड एन हॉस्टल एंड मैंने साइंस सेकंड इसलिए डाला बिकॉज वहाँ का स्टडी एंड फेस्ट का बैलेंस बहुत अच्छा था and it was near to me. So travel was also second thing that I kept in mind because JJ was a bit far. And obviously वहाँ पे JJ में hostelite का ratio ज़्यादा होता है because लोग बाहर से आते हैं. But we put Sion as our second option and JJ we put as the fourth option. Yes. Because KEM पहले, Sion पहले, then there is Nair which is टोपीवाला National Medical College. ये हमने डाला था which is again Sion जैसा ही good balance है between fest and all. But वो हमसे दूर था, मतलब हमारा distance बहुत ज़्यादा था to the college. So उस criteria में वो थोड़ा लोअर रैंक हुआ, इसीलिए आफ्टर साइन नायर आया. देन वी पुट JJ, तो उसका प्रेफरेंस ऑब्वियसली मतलब उसमें बाकी सब सेटिस्फाई हो रहा था, बट द ओनली रीजन वाज कि फेस्ट बहुत ज्यादा है तो उसमें ज्यादा. ये सर सेकंड डालने वाले थे JJ. बिकॉज़ मेरे को पहले फेस्ट ही करना था, पढ़ लिया था फेस्ट करना. Yes. And the fifth one was Cooper because it was relatively new तभी, तो बाप रे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा था, एकदम नया नया था. But then obviously इतना डेवलप नहीं था. There were no seniors, like only 1 or 2 batches of seniors were ऊपर. So we thought के थोड़ा एक्सपीरियंस कॉलेज में पहले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में आते जाएगा. एंड आफ्टर देन वी मूव्ड आउट टू मुंबई. हाँ, वन मोर कॉलेज वाज देयर इन There was one more college in Thane which was the RGMC. तो RGMC हमने उसके बाद डाला था, पहले FI डाला. थाने एक्चुअली मुझसे बहुत क्लोज था, आई लिव देयर, बोथ ऑफ अस, हमारे बहुत क्लोज था वो वाला कॉलेज. तो वो ट्रैवल में हम ला रहे बहुत अच्छा था, बट इन जनरल एजुकेशन एंड ऑल एंड फेस्ट उसमें काफी लोअर रैंक था कंपेयर टू दीस कॉलेजेस, इसीलिए वो नीचे हमने डाला. एंड उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू पुणे. तो पुणे में हमने BJMC डाला, BJ मेडिकल कॉलेज विच इज द टॉप कॉलेज ऑफ पुणे अकॉर्डिंग टू मी. तो यस, तो मुंबई से आगे मूव करके BJ डाला. फिर हमने कोल्हापुर डाला, GMC. I had put Meerut. Yes, I put GMC Kolhapur after that. And after that it was like almost all colleges are similar. And मैं उसके बाद ज़्यादा colleges गए नहीं because we thought कि हमें ऊपर ही मिल जाएगा. So if I had a like थोड़ा नीचे होता हमारा रैंक तो we would have definitely visited. मीरठ था, कोल्हापुर था, सांगली था, नागपुर भी IGMC. नागपुर था and one more सांगली में क्या. So अभी तक का मैं वापस रिवाइज करती हूँ. So first was KM, second was Sion, third was Nair, fourth was JJ, fifth was Cooper, sixth was RGMC Thane, seventh was BJMC Pune, and eighth, ninth was Meerut, Kolhapur, Nagpur, धुले भी था, एक औरंगाबाद भी था. So after that obviously if you can look at our criteria and उसके according तुम लोग colleges डालोगे तो perfect हो. And all the best guys, we would love to see our new juniors if you come to LGMMC. Do give us a comment here and we will surely meet you.